कि सबकी इमेजिनेशन कहाँ तक गई और किस हद तक वो हमारी इमेजिनेशन से सिमिलर है। जो कि हमको काफ़ी फिल्मों में पता चल जाता है शुरू में कि क्या है इस फिल्म का पाथ क्या है। हमें पता है अच्छा ये होगा, उसके बाद वो होगा, फिर वो उसे बचाएगा, फिर ये होगा, फिर इनको प्यार होगा वगैरह। पर ये फिल्म बिल्कुल भी वो नहीं है। उस कैरेक्टर का रंग सोचता हूँ, उस कैरेक्टर का जानवर सोचता हूँ, और तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो एक म्यूजिक पीस सोचता हूँ उस किरदार के लिए। इस फिल्म के लिए भी मैंने उनमें से 2 चीज़ें चुनी कि इस फिल्म का रंग क्या है। Hi, I'm Anshuman Jha and you're watching me on IWM Buzz. Hi, I'm Rasika Duggal and you're watching me on IWM Buzz. Hi, I'm Arjun Mathur and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the star cast of first lead Lord Kulji K, Haveli K and director also. So first, Anshuman, I have to know from your side. When you got this project on your mind, was it always like कि ये इसको OTT में लाए या इसको बड़े पर्दे पे लाए? What was your first? No, I shot it for the big screen. Yeah. It's been shot on a camera and a lens setup, which can best be experienced in theatre. And the sound design of the film is done in such a way on Dolby that it will be best experienced in a cinema, which is why I'm very grateful that it is coming in theatres and post which it will be available on TV. But I'm happy that it's coming on the big screen. Rasika, when you went over this project, was it always safe or you gave a second shot when it would go on? Because आज suspense movie काफी ही पसंद करते हैं audience. मुझे तो लगता है कि ऑडियंस हर टाइम पर अलग अलग चीज़ें पसंद करती है। इट्स हार्ड टू कीप ट्रैक, तो उनको हर समय खुश रखना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप इज्जत से और ईमानदारी से कुछ काम करो तो मुझे लगता है देयर विल बी एन ऑडियंस फॉर इट। जब Anshuman came to me with the script, I felt that it was very interesting, especially for a performer, क्योंकि बहुत performance driven script है। तो I was very tempted to do it and बहुत अच्छे actors जुड़े हुए थे फिल्म के साथ, तन्मय, Arjun, and also we discovered Paresh Bhojja, new talent. So yeah, it's a yes. Was it always yes? Yes, it was always a yes. मतलब the film itself went through quite a journey, you know, ups and downs, और काफ़ी बार हमें डर था कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये काफ़ी देर चला, बट मैं हमेशा से था। बिकॉज मेरे को एक्चुअली ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, बिकॉज इस फिल्म में मुझे कुछ ऐसे शेड्स एक्सप्लोर करने को मिला है जो इससे पहले मेरे को चांस नहीं मिला। तो या आई वाज ऑलवेज ऑन। Rasika, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब सस्पेंस मूवी आपको शूट करना होता है, what is that one thing that makes you more curious? Because वो एक hook होता है जो एंड तक कंटिन्यू रखता है। What is that one side from your side as an actress that made you to say yes and also to go forward? You asked what makes me curious. Yeah. I'm always curious what the audience is thinking, because the audience is always one step ahead and they always feel rewarded to be one step ahead. कि क्या होने वाला है वो guess करते हैं. As a viewer, when you also watch something, you keep guessing ना. What do you think is going to happen and who's going to be this person who does this? What's going to come out of the trunk, or who's going to turn really dark here, or what's going to happen? So I'm always curious to know who thought what, basically. कि सबकी imagination कहाँ तक गई और किस हद तक वो हमारी imagination से similar है. Arjun, Sorry, the question please. what made you more curious about this movie? जो एंड तक ऑडियंस को भी काफी पसंद आने वाला है. I think just it's unpredictable. Yeah. It is unpredictable. That's what I think. कि इस फिल्म पर कोई शुरू में नहीं कह पाएगा कि हाँ ये तो इसमें क्या होने वाला है, हमें पता है, जो कि हमको काफ़ी फिल्मों में पता चल जाता है शुरू में कि क्या है इस फिल्म का पाथ क्या है। हमें पता है अच्छा ये होगा, उसके बाद वो होगा, फिर वो उसे बचाएगा, फिर ये होगा, फिर इनको प्यार होगा वगैरह। पर ये फिल्म बिल्कुल भी वो नहीं है। तो वही है एक्चुअली जो मेन क्रक्स जो जिसने मुझे इस फिल्म को अट्रैक्ट किया, वो यही है कि मैं इस फिल्म को किसी एक स्लॉट में जॉनर में घुसा नहीं पाया। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ। आपके लिए कितना टफ था
सस्पेंस मेंटेन करना, बिकॉज ना सोशल मीडिया का क्रेज है आजकल, सबको 15 सेकंड से ज़्यादा वेट करना बर्दाश्त नहीं होता है। इवन OTT में भी सब स्किप करके आगे आगे देखना पसंद करते हैं, बट फॉर अ मूवी टू मेक You've done it, right? No. I just want to add because this is a recent phenomenon I've become aware of, which is I'm gonna just like throw her under the bus here, but my own mother-in-law, she watches Netflix at 1.5x. Yeah. I A was lot of like, people do that. yeah. I just heard of this for the first time a few months ago. I was like, what? I mean, I can understand YouTube and all, you know, but we're watching shows at 1.5x. So yeah, we're not in any control of how people consume what we. Yes. ये फिल्म परफेक्ट है for 1x and 1.5x. जैसे कंज्यूम करना चाहे वैसे हमने देख। बिल्कुल स्लोली अपने एक्शन क्या 1.5x में भी देख पाए और उतना ही मजा But imagine that, right? Because we're already doing bits for vertical shot. Ads are being shot properly. Productions are being shot on vertical frames. Yeah. Someday they tell us कि अच्छा एक slow motion में करिए क्योंकि this is for 1.5 audience, you know? Yeah. Having said that, I really like the classical format and atmospheric setups, और मेरा ये यकीन है कि there is an audience still, शायद नंबर कम होगा, जो appreciate करते हैं उस टाइप का सिनेमा। तो ये फिल्म उन लोगों को शायद ज़्यादा भाएगी, और जब Netflix पे आएगी तब आप 1x या 1.5 It's giving a full vibes of 70 and 80s के जो थ्रिलिंग शोज होते थे, थ्रिलिंग मूवीज होते थे, जो ऑडियंस को आज भी पसंद है। So the that drama you're giving throughout the trailer also I saw. What's making you to give that red and the black effect more? देखिए, मैं कोई भी एज एन एक्टर ऑल्सो व्हेन आई पिक अ कैरेक्टर, मैं सबसे पहले दो चीज़ें करता हूँ। उस कैरेक्टर का रंग सोचता हूँ, उस कैरेक्टर का जानवर सोचता हूँ, और तीसरी चीज़ जो मैं करता हूँ वो एक म्यूजिक पीस सोचता हूँ उस किरदार के लिए। इस फिल्म के लिए भी मैंने उनमें से दो चीज़ें चुनी कि इस फिल्म का रंग क्या है, और जब मैं डेवलप स्टोरी बोर्डिंग कर रहा था तब सबसे पहले मेरे दिमाग में लाल और काला, बिकॉज red and black are such strong and extreme colors that they represent emotion, aggression in equal weight. And then music socha tha, and I could only hear Beethoven. So probably because of the Beethoven influence and the fact कि हमने एक लेंस में शूट किया है, all of those things come together. जो आप 80s बोल रहे हैं, मैं थोड़ा और पीछे जाऊँगा, शायद 60s 70s का ज़्यादा वाइब है, क्योंकि उस ज़माने में लोग कम में ज़्यादा करते थे। अब क्या हो गया, हमारे पास इतने टूल्स हैं ना कि हमें लगता रहता है ये भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ कर लेते हैं, और लालच हमेशा है कि ये सब है, इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे। सो माय एंडेवर वाज कि उस लालच से मैं थोड़ा दूर रहूँ और कोशिश करूँ कि जितनी चीज़ें ज़रूरत है उतना ही करूँ। और मैं बहुत बड़ा बिलीव करूँ इसमें कि हर प्रोजेक्ट में कुछ ज़रूरत होता है, कुछ वो नीड एंड वांट वाला है। मेरे नीड कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं वांट में लग जाता नहीं। Sarika, which genre you want to explore more now after doing this? Rom-com, definitely. I'm a huge fan of rom-com. आप मुझे कोई rom-com 50 बारी भी दिखा दो, मैं उसी इंटरेस्ट के साथ और उसी इमोशन के साथ वापस देखूंगी। तो एंड मैं rom-com देखती थी ना, तो बस मैं फिर घर पे बैठ के विंडो खोल के to think about it for a long time. Some that kind of a viewer of rom-com. तो एक तो बनता है अपने करियर में। But don't you feel post OTT जब से मिर्ज़ापुर भी रिलीज हुआ है, काफी थ्रिलिंग और मार-धाड़ वाली सीरीज सबसे ज़्यादा दिखने लग गई है। Even on movies also we are seeing rom-com जैसी जॉनर काफी लिमिटेड हो गई है, because people are thinking जहाँ ज़्यादा मार-धाड़ है वहाँ ही सबसे ज़्यादा हिट्स है। आई थिंक ऑडियंस का भी, जैसे मैंने पहले बोला कि ऑडियंस की भी टेस्ट बदलती रहती है, तो उनको किसी कैटेगरी में स्लॉट करना ठीक नहीं होगा। हम कई बार ऑडियंस को स्टीरियोटाइप कर देते हैं और फिर उस हिसाब से कंटेंट बनाते हैं, तो ऑडियंस हैज मूव्ड ऑन और इज वांटिंग अ वैरायटी। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा इंसान इस तरह का कंटेंट नहीं देखेगा। मतलब आप सोच सकते हो कि अर्जुन माथुर रियलिटी टेलीविजन देखता है, नहीं ना, आपको ऐसा नहीं लगता, लेकिन अर्जुन माथुर रियलिटी टेलीविजन देखता है, तो इसलिए एग्जांपल है कि आप ऑडियंस को स्टीरियोटाइप नहीं कर सकते कि बहुत सारे लोग बहुत अलग-अलग चीजें देखते हैं। तो मेरा ये मानना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ओटीटी शोज ऐसी भी हैं जो मतलब जैसे गुल्लक और पंचायत, उनका बहुत एक स्पेसिफिक टाइप का ह्यूमर है, आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं है, स्लाइस ऑफ लाइफ ह्यूमर है। इट्स वेरी नाइस एंड दे गॉन इनटू 4-5 सीजंस।
I love those shows. Yeah. Like I watch it. So it's not true that only Marghat is working. You know, if I may, कि क्या है ना, audience actually yeah, like she said, कि this is something जो हम audience पर project कर रहे हैं. सच बात ये है, audience जब कुछ देखने जाती है, वो हमेशा आपकी साइड पर होते हैं, नंबर 1, और उनको बस कुछ अच्छा देखना है, ठीक है? अब किसी ने कुछ बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, फुल इंटेग्रिटी के साथ, कन्विक्शन, पैशन के साथ बनाया, और वो ऑडियंस को बहुत पसंद आया. लोगों ने सोचा कि ऑडियंस को ये जॉनर पसंद आया, बट एक्चुअली ऑडियंस को वो कन्विक्शन, वो पैशन, वो इंटेग्रिटी पसंद आई है, ओके? एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दैट सेम ट्रेंड, वी कैन अप्लाई दैट सेम कन्विक्शन, पैशन, ऑथेंटिसिटी to another genre, and audience will love that also at that time. It's not that the audience only wants action. It's just that now everyone thinks that they just have to make action for it to make money. As opposed to आगे एक सैयारा आकर it shattered that. Yeah. So and what's in the film other than just like passion, conviction, you know, something new and fresh, authenticity, you know. So I think it's more that. Or Vishnu, the reason South films work, I have a little observation on this. When they make a film, there is a lot of authenticity and integrity. Yeah. You can see it, even in their smallest to their biggest, even in their actors and their performances. They pay a lot of attention to being authentic in their films. So, I mean, which is the film that has worked? Vishwarupa, the Vishnu Bhagwan film, which is done like Narasimha. Dasha. Nobody gave that film a chance. But that film has done phenomenally because it was made with such honesty about what they were saying. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बाद अब सब कोशिश करेंगे वैसी फिल्में बनाने का टेम्पलेट लिया, ठीक है? उन लोगों ने बहुत ऑनेस्टी से बनाई है, and उसका you see the film, it's really well done, so you enjoy it. Now आप उसको आप कॉपी करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा. आप जैसा अर्जुन ने कहा, you have to make your film with the same passion, integrity and authenticity, and it will work. अर्जुन मैं आपसे जानना चाहूँगी OTT में आजकल ओवरफ्लो हो गया है कंटेंट, काफ़ी अच्छे कंटेंट भी मिस हो जा रहे हैं. हाउ यू सी एज एन एक्टर, बिकॉज आजकल काफ़ी आर्टिस्ट OTT को एक अलग वे में देखते हैं. दे सी दैट देयर गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम आल्सो. I think कि going 2 steps further, आज तो उससे भी बुरा हो गया है. अब तो अब तो क्या-क्या नहीं चल रहा, माइक्रो ड्रामास चल रहे हैं, 15 10 second episodes, 1 minute episodes, whatever, पता नहीं क्या-क्या चल रहा है. पर ठीक है, but that's fine. जो भी साइड में, the world will keep changing, but there is a certain people will only, I mean, there are lots of people who will try to jump onto every bandwagon because that's a much more commerce-oriented approach. But then there are people who will just stick to doing what they know and what they are good at, you know. और audience में भी ऐसा ही होगा. Audience में भी हर तरह के लोग exist करते हैं और करेंगे, you know. तो आप बस उम्मीद कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जिस चीज़ में मेरा पूरा दिल और ध्यान और पैशन जा रहा है, कि उसको ऑडियंस मिले, you know, जो उसको इतनी पैशनेटली कंज्यूम करना चाहते हैं. मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी सोशल मीडिया आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया, बिकॉज नाउ वी सी सोशल मीडिया इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, हैज अ पोर्टफोलियो आल्सो फॉर एन एक्टर. हाउ यू सी डज इट प्ले हैज अ पोर्टफोलियो आल्सो फॉर एन एक्टर? I mean, I don't look at it like that. And if other people do, it makes me a little sad because I don't think that is a true test of, and neither is your Instagram following, nor what you put up on social media as content. It's not telling people what your acting abilities are. So I think that if people use that to judge people for acting ability, that's a little bit of a mismatch. That should not be the case. इस साल के आप अगर जो सबसे सक्सेसफुल फिल्म है सैयारा, उसके दोनों एक्टर्स को देखिए, उनको वो फिल्म या उसका सक्सेस सोशल मीडिया की वजह से नहीं हुआ. They are genuinely good at what they do, and that's the true litmus test. When you get an opportunity, are you ready for it? और ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आज की दुनिया में मिलियंस लोगों के मिलियंस फॉलोअर्स हैं. So an actor tomorrow can choose to become an influencer when they feel like it. An influencer may not necessarily be an actor. You know? Yeah.
that understanding is very essential for everyone. You can't cast in things based on social media. It's a little unfair. True. I'm a fan of auditioning. I'm a fan of horses for courses, and yeah, but there will be exceptions. शायद कोई social media पे एक आता है influencer हो जो शायद बहुत अच्छा एक्टर निकलता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी है। और है एक अहिल्या करके एक्ट्रेस है पौंडीचेरी से जिन्होंने what's the film? I Want to Talk करके फिल्म में आई है। वो उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। अब वो इन्फ्लुएंसर है पहले, लेकिन वो अच्छी एक्टर भी है और उनका करियर बहुत अच्छा होगा। लेकिन that is an exception. That can't be a rule. कि you know. That can't be a given. That can't be a given. हाँ, कि हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक अच्छा एक्टर होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या हर एक्टर इन्फ्लुएंसर बन सकता है? I think yes. अगर जरूरत पड़े तो। ऑन सोशल मीडिया राइट। देखिए सोशल मीडिया जब आया था, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जब खोला था लाइफ में, तब तो इट वाज जस्ट अ मींस टू शेयर विद योर क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, योर पर्सनल यू नो। तो धीरे धीरे कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, कुछ और हो गया, इनकम स्ट्रीम बन गया। एंड और भी आई थिंक दिस इज अ एनिमल दैट विल कीप म्यूटेटिंग। और नहीं, मेरी तरफ से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता था और काफ़ी कंफ्यूजन होता था, क्योंकि आई कुड नॉट मेक द डिस्टिंक्शन ईजिली कि अब ये पर्सनल नहीं, अब ये पब्लिक है, और अब ये इनकम स्ट्रीम है, और अब ये पता नहीं आगे जाकर क्या बनेगा। तो वो दिमाग से बहुत खेलने लग गया मेरे, और मैं थोड़ा दूर हो गया सोशल मीडिया से। और अब मुझे लगता है कि एक्चुअली आई फील एक एक्टर के लिए सोशल मीडिया काफ़ी डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ 24 घंटे आपकी शक्ल अपनी रील्स पे अगर देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहे हो आप, क्या खा रहे हो, किस जिम से निकले हो, कितने अंडे खाते हो दिन में, वगैरह वगैरह, तो सॉरी लेकिन मैं आपसे एज अ कैरेक्टर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। यू नो, मैं आपकी पर्सनैलिटी और आपके पॉलिटिक्स और आपके हाउ यू ट्रीट पीपल और आपके ओपिनियंस, आई नो टू मच to take you seriously when I'm watching you on screen. That's so I find now I think that I want to try and protect my just sanity, aura before anything else, and sanity and everything, you know, कि ये कोई ये फ्री का माल नहीं है, you know, कि मैं फेंकता फिरूं लोगों को। मतलब आप दोनों की सीरीज के काफी मीम्स बनते हैं, तो हाउ यू सी लाइक दैट, और कभी शेयर्स होते हैं आप लोग के कोई पर्सनल ग्रुप्स में या कोई अपने फ्रेंड सर्कल्स में, इतने सारे जो मीम्स आप लोग अपने ऊपर देखते हैं या सीरीज पे देखते हैं? हुआ है हाँ बहुत हुआ है। मीडियम हेवन के काफी बनते हैं। हाँ बहुत। वो तो मीम्स वगैरह तो छोड़ो, वहाँ तो मीडियम हेवन पर मेरे तो जिन्होंने साउंड किया, जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, गौरव रायना, तराना मारवा। वो तो they used to just send me frames from the edit, you know, from the timeline, just me doing some funny shit and just like in repeat, you know what I'm saying? And they are having a laughing fit over there watching, yeah, exactly, yeah. तो yeah, होता है। मिर्जापुर का जो पहला सीन मैंने शूट किया था, सीजन 1 का पहला सीन, एंड उसमें ना मैं ऐसे बेड पे बैठी हूँ और ऐसे सो के उठी, एंड मेरे बाल ना ऐसे बिल्कुल खड़े हुए थे एक तरफ से। तो मैंने जब शॉट देखा करने के बाद मैंने गुरु से कहा, डायरेक्टर से कहा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही मैसी होने चाहिए मैसी, क्योंकि इंसान बेड से उठा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सच सवर के उतरो आप बेड से, लेकिन फिर भी इतना नहीं कि ऐसे कुछ लग रहा है कि कुछ उग रहा है सर से, यू नो, किसे नहीं चल जाएगा चल जाएगा। उस समय हमें क्या पता था कि the show is going to become big, this scene is going to be remembered, this particular shot will become a meme which says क्या बे क्या बे। So there's that shot of me with something growing out of my head and I'm saying क्या बे। That's it, right? क्योंकि I think I do this that shot, so the gif itself। वो काफी मैंने देखा है सर्कुलेट होता है। आप कौन सा चाहते हैं कि ये मूवी से रील बनना चाहिए या उसका पर्टिकुलर मीम्स बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द बेस्ट वन? According to me, ट्रेलर से बता the film is the best one. दो। So you should watch the film, and उसके बाद audience जो I feel
audience is extremely smart and they make their own choices और वो इस फिल्म के साथ I mean I know for a fact कि ये इतने अतरंगी किरदार हैं पांचों कि बहुत स्कोप है इनका I get memeable है सबके सब तो अगर लोगों को मजा आएगा तो बनाए इनफैक्ट हमारे ट्रेलर पे मैंने 2-4 रील्स ये मीम्स देखे हैं जो कि काफी फनी है या और उसी से अटैच्ड हम एक नया कैंपेन भी खोल रहे हैं ब्रिंग योर ओन ब्रेन्स इन थिएटर्स क्योंकि हमने देखा कि बहुत 1-2 मीम्स बने थे कि इस फिल्म को देखने के लिए दिमाग लगेगा दोस्त एक मिनट कुछ रील देखा and finally a Bollywood film where you can't leave your brain at home. So that's what we are saying. You have to bring your own brain to watch this film. So I hope things happen great. So lastly, one message for the audience. 10th October, black comedy thriller genre films अगर आपको पसंद है तो आइए थिएटर में और लॉर्ड कर्जन की हवेली में. You're welcome. Anything more, Audience, my baap, 10th October, please देखिए. Our coming. Our coming, हवेली. Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you.